بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے لائیو دورہ صرف کا سبق نمبر 10 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے اسماء مشتقات کے حوالے سے۔ وہ جتنے پڑھے گئے، 3 ہیں یا تمام پڑھے گئے، جو بھی ہے۔ پہلے اسباق کے اندر ہم نے جتنی بھی 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام، اور پھر مصدر سے کتنی چیزیں نکلتی ہیں، ماضی مضارع کے صیغوں کی علامات اور پہچان کا طریقہ، گردانوں کی علامات اور پہچان کا طریقہ، گردانے بنانے اور یاد کرنے کا طریقہ، پھر ہم نے اس کا اجرا بھی کیا تھا۔ آج ہم اسماء کی بات شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کچھ باتیں جو ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ اسم اور فعل کے درمیان کیا فرق ہے؟ فعل کے اندر کل 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، صرف کے اندر ہی 14 صیغے ہیں، تو وہ فعل کے اندر 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے، پھر 6 غائب کے، اس کے اندر 3 مذکر، 3 مؤنث، 6 حاضر کے، 3 مذکر، 3 مؤنث، 2 متکلم کے۔ لیکن جب اسم کی گردانیں ہوتی ہیں، اسم کے اندر غائب، حاضر اور متکلم کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فاعل، اس کے اندر غائب، حاضر اور متکلم نہیں ہوتا، اور اسم کے اندر 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ میں 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں، 3 مذکر، 3 مؤنث۔ اس کے اندر غائب، حاضر اور متکلم کے صیغے نہیں آتے۔ اگر فاعل صیغہ بتانا ہو تو یہ نہیں کہیں گے واحد مذکر غائب یا حاضر، نہیں، بلکہ کہیں گے واحد مذکر اسم تفضیل بس۔ پھر جب فعل کا صیغہ بتایا جاتا ہے، وہاں ہم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ واحد مذکر غائب یا حاضر یا متکلم، تو اسم کی گردانوں کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات کہ اسم کی گردانوں میں 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ تمام اسماء کی گردانوں میں جو اسماء مشتقات ہیں، جن کی گردانیں آتی ہیں، تمام اسماء جن کی گردانیں ان کے اندر 6 نہیں بلکہ اسم اعلیٰ اور اسم ظرف کے اندر تو مذکر مؤنث کا بھی تصور نہیں ہوتا، صرف واحد تثنیہ، اس کے علاوہ نہیں۔ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے، یہ ثلاثی مجرد اور غیر ثلاثی مجرد سے الگ الگ 2 طریقے ہیں، اس لیے کہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، ایک ہی وزن ہے، چاہے وہ باب ماضی مکسور العین ہو، مفتول عین ہو، مضموم العین ہو، مضارع مفتول عین ہو، مکسور العین ہو یا مضموم العین ہو، یہ نہیں ہے۔ اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور غیر ثلاثی مجرد کے ابواب سے اس میں فاعل کا وزن ایک خاص نہیں ہے، بلکہ جس طرح کا مضارع ہوگا، ہر ایک کے باب کے مضارع سے الگ الگ اس میں فاعل بنایا جائے گا، وہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، بالکل آسان ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر آپ 3 سماعت فرما لیں کہ جتنے بھی اسماء مشتقات ہیں یہ 6 ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تبدیل، صفت مشبہ۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جو سبق کے اندر میں آپ کو انگلیوں کے اوپر سمجھاتا ہوں کہ 1 2 3، یہ اس لیے انگلیوں کا جو سمجھانے کا انداز ہے وہ ایک ہی شخصیت ہے، جن کو زمانے والے امام النحو علامہ راشد علی رضوی صاحب کہتے ہیں، وہ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اور یہ استادوں کا ہی فیض ہے، اگر آج میں آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ استادوں کا فیض ہے کہ اتنی جسارت کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید اضافہ فرمائے۔ وہ خالی ایک دن نہ ایسا ہوا کہ میں نے استادوں کے نام سے امام النحو لکھا تو کسی نے مجھے کمنٹ کیا، کہتے کہ انہوں نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں، پھر امام کیسے بن گئے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، کیا امام کے لیے شرط ہے کہ کتاب لکھنا؟ حالانکہ امام النحو پڑھانے کے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے، استاد صاحب سمجھانے کے بھی امام ہیں۔ کیا ہے؟
समझाने के भी इमाम हैं। तो फायदा नंबर 3 ये है कि 6 अस्माए मुश्तक्कात हैं, 5 फेल मुजारे के वाहिद मुज़क्कर गैब से बनते हैं, 1 इसमें मफूल ये मुजारे वाहिद मुज़क्कर फेल मुजारे मजहूल से बनता है, वाहिद मुज़क्कर फेल मुजारे मजहूल से। बकिया जितने भी हैं वो वाहिद मुज़क्कर फेल मुजारे मारूफ से बनते हैं। अब आते हैं सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल बनाने का कायदा कुलिया ये है कि इसको बनाते हैं जिस बाब से भी आए कि आप वाहिद मुज़क्कर गैब फेल मुजारे का सीगा ले लें, जिस तरह है यफ़अलु। यफ़अलु नजर आ रहा है। सबसे पहले आप अलामत मुजारे को गिरा दें, गिराने के बाद फा कलमा को आप फतह दे दें, फा और ऐन कलमा के दरमियान अलिफ अलामत इसमें फाइल की लगा दें। ये जो फा कलमा को फतह दिया, इसके फा और ऐन कलमा के दरमियान अलिफ अलामत इसमें फाइल की लगा दें। ये जो अलिफ है, जिस तरह पहले वाली हमने गिरदाने पढ़ी, माजी, मुजारे, नफी, ताकीद, नफीजात, हर गिरदान की अलामत होती जिसकी वजह से पहचानी जाती है कि ये कौन सी गिरदान है। तो इसमें फाइल की पहचान का तरीका ये है कि फा और ऐन कलमा के दरमियान अलिफ अलामत इसमें फाइल होगी, और ऐन कलमा को के नीचे कसरा दे दें अगर पहले ना हो। तो यहाँ या फालू के अंदर पहले कसरा नहीं था, ऐन कलमा के नीचे हमने कसरा लगा दिया। तो आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा दें, तो ये बन जाएगा यफ़इलु से फ़ाइलुन बन जाएगा, यफ़इलु से यफ़अलु से फ़ाइलुन का सीगा बन जाएगा इसमें फाइल का। और गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल बनाने का, इसमें मफूल बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, वो तो है ही मुश्किल नहीं। अब जिस बाब से भी आपने इसमें फाइल बनाना है तो उसके मुजारे से सबसे पहले आप अलामत मुजारे को गिरा दें, उसकी जगह मीम मजमूम लगा दें, और आखिर के माकबल को कसरा दे दें अगर पहले ना हो। अगर पहले हो तो उसको उसकी हालत पर छोड़ दें, आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा दें, तो आपके लिए गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें फाइल का सीगा बन जाएगा। जैसे युक्रिमु से युक्रिमु है, हमने इसमें फाइल बनाना है तो इस अलामत मुजारे को गिरा दे, मीम मजमूम लगा दे, मुकरिमु है, आखिर के माकबल को कसरा दे दे अगर ना हो, अगर है तो उसको उसकी हालत पर छोड़ दें, आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा दें, तो ये बन जाएगा युक्रिमु से मुकरिमुन। जिस तरह अगर यहां तो पहले कसरा था, अगर ना हो तो फिर देंगे, जैसे यतक़ब्बलु है, ये है यतक़ब्बलु। हमने इसमें फाइल बनाना है तो आसान तरीका है, अलामत मुजारे को गिराकर मीम मजमूम लगा दें, आखिर की माकबल को कसरा दे दें, तो यहां नहीं था हमने दे दिया, आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा दें, तो ये बन जाएगा यतक़ब्बलु से मुतक़ब्बिलुन। आपका इसमें फाइल का सीगा तैयार हो जाएगा, इसमें फाइल की गिरदान। और एक होता है फाइल, एक होता है इसमें फाइल, इन दोनों के दरमियान फर्क है। ये नहीं है कि इसमें फाइल और फाइल एक ही चीज है, नहीं। इसमें फाइल जो होता है वो मुश्तक होना उसके लिए जरूरी है, फाइल के लिए मुश्तक होना जरूरी नहीं है। जैसे दाराबा जैदुन, दुन में जैद जो है ये फाइल है, इसमें फाइल नहीं है क्योंकि ये मुश्तक ही नहीं है। फाइल के लिए मुश्तक होना जरूरी नहीं इसमें फाइल के लिए मुश्तक होना जरूरी है। फिर कई तरह से फर्क किया जाता है। फाइल जात माल वस्फ होता है, उसके अंदर वस्फी माना भी होता है। जिस तरह फाइलुन कहेंगे करने वाले को, नासिरुन कहेंगे मदद करने वाले को, कारिउन कहेंगे पढ़ने वाले को, कि जात भी है साथ वस्फ भी है। लेकिन फाइल जो होता है वो ये नहीं होता, बल्कि वो खाली जात होता है। ऐसा नहीं, वो जात भी हो सकता है। जिस तरह जैद है, इसके अंदर ये जात मल वस्फ नहीं है फाइल, लेकिन खाली जात है। ऐसा नहीं कि जैद के अंदर वस्फी माना भी है, नहीं, ये खाली जात पर दलालत कर रहा है। और जो इसमें फाइल होगा जैसे फाइलुन, नासिरुन, कारिउन, ये जात मल वस्फ पर दलालत करता है।
इसमें मफूल बनाने का तरीका, इसमें मफूल को बनाते हैं वाहिद मुज़क्कर फेल मुज़ारे मजहूल से। अब सवाल ये होता है कि आप तमाम अस्माए मुश्तक्कात को वाहिद मुज़क्कर फेल मुज़ारे मारूफ से बनाते हैं, जब बारी इसमें मफूल की आती है आप अकेले को मजहूल से बनाते हैं, आप उसको भी फाइल से बनाए फेल मुज़ारे मारूफ से। उसकी वजह यह है कि उसकी मुशाबहत ज्यादा मारूफ के बजाय मजहूल के साथ उसकी ज्यादा दोस्ती है, उसका ज्यादा करीबी रिश्ता है। वो कैसे कि ये दोनों एक तरह के साथी हैं, मजहूल की भी फाइल की बजाय मफूल की तरफ निस्बत होती है उसके अंदर, और इसमें मफूल में भी फाइल की बजाय मफूल की तरफ निस्बत होती है। इन दोनों की इस यारी की वजह से हमने दोनों का जो रिश्ता था वो कायम कर दिया कि हमने इसमें मफूल को जब बनाया तो मुजारे मजहूल से बना दिया। जैसे युफ आलू सबसे पहले आप अलामत मुजारे को गिरा दें, इसकी जगह मीम मफ्तू लगा दें, मीम मफ्तू लगा दें तो या फालू से मफ आलू बन जाएगा। आइन और लाम कलमा के दरमियान वाओ साकिन अलामत इसमें मफूल की लगा दें यहां, और वाओ चाहती है, आपको पता है कि मेरा माकबल जमा हो, इसके माकबल को आप जमा दे दें। आखिर में तनवीन तमक्कुन अलामत इसमियत की लगा दें तो ये आपका इसमें मफूल भी तैयार हो जाएगा। मफऊलुन ये हमारा बन गया, इसमें फाइल भी बन गया, इसमें मफूल भी बन गया। एक तो हमने ये पढ़ा कि इसम की गिरदानों में 6 सीगे आते हैं, 3 मुज़क्कर 3 मुअन्नस, 3 मुज़क्कर वाहिद तस्निया जमा, 3 मुअन्नस वाहिद तस्निया जमा। और ये तमाम गिरदानों में 6 नहीं आते, बल्कि इसमें ज़र्फ और इसमें अल्लाह के अंदर तो मुज़क्कर मुअन्नस का भी तसव्वुर खत्म हो जाता है, सिर्फ वाहिद तस्निया का तसव्वुर रहता है। यहां तो गैब हाज़िर और मुतकल्लिम का तसव्वुर खत्म किया था, जो इसमें तब्दील, इसमें मफूल, सिफ्त मुशब्बा, इसमें फाइल में, लेकिन जब बारी आती है इसमें ज़र्फ और इसमें अल्लाह की तो वहां गैब हाज़िर मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस का भी तसव्वुर खत्म हो जाता है, वहां सिर्फ वाहिद तस्निया रहता है। अगर जिस तरह मदरिबुन है या मफ़अलुन है, तो अगर सीगा बताना हो तो हम कहेंगे वाहिद इसमें अल्लाह, ये भी नहीं कहेंगे वाहिद मुज़क्कर इसमें अल्लाह या वाहिद मुअन्नस इसमें अल्लाह या वाहिद मुज़क्कर गैब इसमें अल्लाह, नहीं, क्योंकि जब ये है नहीं तो इस हम सीगा भी ये बताएंगे। और जब हम इसका तर्जमा करेंगे ना तो हम ये गैब हाज़िर और मुतकल्लिम का तसव्वुर करके नहीं करेंगे, बल्कि वाहिद मुज़क्कर इसमें फाइल है तो हमने जितनी चीजें हमने बताने में जिक्र की हैं वाहिद मुज़क्कर इसमें फाइल उसके मुताबिक तर्जमा करेंगे। जब इसकी बारी आएगी तो हम इसके अंदर मुज़क्कर भी नहीं है तो हम मुज़क्कर का भी लिहाज नहीं करेंगे। आगे है इसमें तब्दील पढ़ते हैं, उसके हवाले से बड़े दिलचस्प सवालात भी हैं और जवाबात भी हैं। पहले इरादा तो था कि ना जिक्र करें, इसलिए कि कुछ ऐसे साथी भी हैं जो जिनके लिए मुश्किल ना हो, यानी इब्तदाई तुलबा हैं, तो अगर इस तरह के ज्यादा सवाल जवाब किए जाएं सबक के अंदर तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि हर सबक में हम मजीद ये सवाल करेंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। ये तो इजाफी चीजें हैं। असल मकसद जो है हमारी कोशिश है वो बयान किया जाए आसान अंदाज में कि हर सुनने वाले को समझ आ जाए कि ये क्या चीज जिक्र की जा रही है। ये मिटा दें तमाम का तमाम। नंबर 3 है इसमें तब्दील। इसमें तब्दील वो इसम है जो फेल से मुश्तक किया गया हो ताकि ऐसी जात पर दलालत करे जिसमें माना मस्तरी किसी दूसरे के मुकाबले में ज्यादा पाया जाए। मिसाल के तौर पर जहां इसमें तब्दील होगा वहां 2 बंदे होंगे, वो एक ही वस्फ, ये 2 बंदे हैं, ये एक वस्फ है, ये दोनों बंदे इस वस्फ के अंदर शरीक हैं, लेकिन एक बंदा इस वस्फ में दूसरे बंदे के अंदर ये वस्फ जो है ये ज्यादा पाया जा रहा है। जैसे ज़ैदुन अक़रअ मिन अम्रिन, अब पढ़ने में जैद भी पढ़ता है, अमर भी पढ़ता है, लेकिन इसमें तब्दील बताएगा भाई पढ़ने में दोनों बराबर नहीं है, बल्कि जो पहले वाला है इसमें तब्दील पहले जो आया है जैद ये अमर से ज्यादा पढ़ता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो ऐसे कोई और भी ज्यादा पढ़ने वाला हो, लेकिन यहाँ जैद का मुकाबला अमर से है, इसलिए उसका मुकाबला अमर से है तो अमर से ज्यादा पढ़ता है। फिर इसमें तब्दील के लिए कुछ शराइत हैं,
नंबर 1 इसमें तब्दील सुलासी मुजर्रद से आता है, गैर सुलासी मुजर्रद से नहीं आता। आप पहले शर्तें समाअत फरमा लें, उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि इनसे ये इसमें तब्दील क्यों नहीं आता, क्या वजह है। नंबर 1 गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें तब्दील नहीं आता बल्कि सुलासी मुजर्रद से आता है। नंबर 2 इसमें तब्दील उस सुलासी मुजर्रद से भी नहीं आता कि जिसमें ऐब और रंग वाला माना पाया जाए। नंबर 3 इसमें तब्दील उस सुलासी मुजर्रद से भी नहीं आएगा कि जिसका माना ज्यादती और नुकसान को कबूल ना करे। नंबर 4 इसमें तब्दील अफ़ाले नाक़िसा और अफ़ाले गैर मुतसर्रिफा से भी नहीं आता। दोबारा समाअत फरमा लें कि इसमें तब्दील किन किन से नहीं आता। नंबर 1 इसमें तब्दील सुलासी मुजर्रद से आता है, गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें तब्दील नहीं आता। नंबर 2 इसमें तब्दील ये उस सुलासी मुजर्रद से भी नहीं आता कि जिसमें ऐब और रंग वाला माना पाया जाए। नंबर 3 इसमें तब्दील उस सुलासी मुजर्रद से भी नहीं आता कि जिसमें जो ज्यादती और नुकसान को कबूल ना करे। नंबर 4 इसमें तब्दील उससे भी नहीं आता अफ़ाले नाक़िसा से और अफ़ाले गैर मुतसर्रिफा से। अब सवाल ये होता है कि इसमें तब्दील गैर सुलासी मुजर्रद से क्यों नहीं आता। एक तो बनाने का तरीका छोड़ दिया था हमने, ये बिल्कुल आसान है। अलामत मुज़ारे को गिरा दें, उसकी जगह हमजा मफ्तू लगा दें। आफ़आलू है और ऐन कलमा हमेशा ही मफ्तू होगा, तो आखिरी हरफ को उसकी हालत पर छोड़ दें। जैसे यफ़आलू है, हमने इसमें तब्दील बनाना है तो अलामत मुज़ारे को आप गिरा दें, इसकी जगह हमजा मफ्तू लगा दें। ऐन कलमा को हर हाल में हमने फतह देना, ये नहीं है कि इसकी हरकत तब्दील करें और आखिरी हरफ को उसकी हालत पर छोड़ दें, तो ये बन जाएगा यफ़आलू से अफ़आलू, इसमें तब्दील बन जाएगा। और हमने जो कहा था कि 4 से नहीं आता, तो क्यों नहीं आता, इसलिए कि इसमें तब्दील का वजन अफ़आलू के साथ खास है। अगर हम गैर सुलासी मुजर्रद से, मिसाल के तौर पर यस्तखरिजु से हम इसमें तब्दील बनाते हैं, किससे बनाते हैं, यस्तखरिजु से इसमें तब्दील बनाते हैं। यस्तखरिजु से अगर हम इसमें तब्दील बनाते हैं और इसमें तब्दील का वजन खास है अफ़आलू के साथ, यानी इस वजन पर आएगा। ये आपको नजर आ रहा है कितने हरूफ हैं 1 2 3 4 अफ़आलू, और इससे हमने इसमें तब्दील बनाना है। अब एक ही सूरत होगी, अगर हम इसको गिरा कर इसकी जगह हमजा वसली मफ्तू लगाते हैं और आखिर के माँ इन कलमा को फतह देते हैं, ये बन जाएगा अस्तखराजू। अगर ये बनाते हैं तो वजन बरकरार नहीं रहता, वजन बरकरार नहीं रहता। अगर हम ज्यादा हरूफ को गिरा दें सीन ता को, तो बन जाएगा अखराजू। अब वजन तो है अखराजू, इसमें तब्दील का वजन तो बन गया, लेकिन मसला ये है फिर सुलासी मुजर्रद या खुरूजू से अखराजू और गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें तब्दील में कोई फर्क नहीं रहेगा। एक उम्मीद ये समझ आ गई होगी कि गैर सुलासी मुजर्रद से इसमें तब्दील क्यों नहीं आता, ये अक्सर सवाल किया जाता है। इसलिए मैंने कहा कि जो ज्यादा सवालात थे जरूरी उनको हल किया जाए इसमें तब्दील के हवाले से। नंबर 2, ये बड़ी बात काबिल गौर है और तवज्जो गौर है, ये तवज्जो करने से समझ आएगी वो कौन सी कि जिसमें ऐब और रंग वाला माना पाया जाए उससे इसमें तब्दील क्यों नहीं आता भाई। आई समझ, जिसमें ऐब और रंग वाला माना पाया जाए उससे इसमें तब्दील क्यों नहीं आता। अगर इसमें तब्दील का वजन आ भी जाए तो हम कहते हैं ये सिफ्त मुशब्बा है, इसमें तब्दील नहीं। बड़ा दिलचस्प सवाल आता है। अब ये समझना सबसे पहले इसमें फाइल और इसमें तब्दील में माना हुदूसी ये इस्तिमरार के तौर पर नहीं होता। माना हुदूसी का क़याम इस्तिमरार दवाम के तौर पर नहीं होता, बल्कि कभी होता है कभी नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर जैद दारिबुन मारने वाला है तो ये नहीं कि हमेशा मार रहा है,
बल्कि कभी मारता है कभी नहीं मारता। इसी तरह जैद अदरबु मिन अमर, जैद अमर से ज्यादा मारने वाला है, तो ये हमेशा नहीं हमेशा ही जैद अमर से ज्यादा मारता है। कभी ऐसा भी होता है कि बंदा एक दिन में दूसरे से ज्यादा काम करता है, दूसरे दिन जिससे मुकाबला था ये जीत गया, दूसरे दिन हार जाए। यानी इसमें तब्दील और इसमें फाइल में माना दूसरी जो माना मस्दरी है, माना मस्दरी का क्याम जो है वो हुदूस के तौर पर होता है, दवाम के तौर पर नहीं होता। हुदूस के तौर पर होता है, दवाम के तौर पर नहीं होता। और याद रखना जिसमें ऐब और रंग वाला माना होता है, और ऐब ऐसा नहीं होता कि जो एक दिन है दूसरे दिन ऐब खत्म हो जाए, और ऐब के अंदर भी दवाम पाया जाता है, 4 दिन ऐब रहता है या नहीं रहता है। ऐब और रंग, अगर एक बंदा स्याह है तो वो ये तो नहीं रात इंसान स्याह हो तो सुबह उठे तो चेहरा उसका सफेद हो, ऐसा तो नहीं है। या एक हफ्ता वो स्याह था दूसरे हफ्ते वो मतलब सफेद हो गया। हाँ, आप ये कहें कि भाई एक बंदा ब्यूटी पार्लर पर जाए और क्रीम वगैरह लगाकर वो सफेद हो जाए, वो तो एक आरजी है ना, वो आरजी है, उसकी बात नहीं है ऐब और रंग की। क्योंकि ऐब और रंग जो होता है ये इसके अंदर हुदूस नहीं होता बल्कि दवाम होता है। हालांकि माने मस्दरी जो इसमें तब्दील के अंदर पाया जाता है वो हुदूस के तौर पर होता है, उसका क्याम हुदूस के तौर पर होता है, दवाम के तौर पर नहीं होता। इसलिए ऐब और रंग वाले माने से इसमें तब्दील नहीं आता। अगर आ जाए तो हम कहेंगे वो सिफ्ते मुशब्बा बनेगा। जैसे अब यादू अस्वादू, अब यादू अस्वादू। अच्छा जी, हम फिर ये क्यों कहते हैं कि ये सिफ्त मुशब्बा है? इसलिए कि इसके अंदर भी दवाम वाला माना होता है और रंग वाला, क्यों इसके अंदर दवाम होता है, सिफ्त मुशब्बा भी दवाम वाले माने पर दलालत करता है, इसलिए फिर हमने इसको इस सिफ्त मुशब्बा के साथ खास कर दिया। उम्मीद है इस बात की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक सवाल होता है फिर, जिस तरह अजहालू माकू, ये बंदा फलां से ज्यादा जाहिल है, ये बंदा फलां से ज्यादा अहमक है। अब कोई कह सकता है ये भी तो इसमें तब्दील इस्तेमाल हुआ है, ये भी जहालत एक ऐब है माकत भी एक ऐब है, और आप कह रहे हैं कि जिसमें ऐब और रंग वाला माना पाया जाए उससे इसमें तब्दील नहीं आता, तो यहां तो आया है। उसका जवाब ये है, ये जो ऐब है ये ऐब जाहिरी है। क्या है? ऐब जाहिरी है। वो जिसकी हम ये जाहिरी तौर पर है कि बंदे जहालत चंद दिन बाद खत्म हो जाए, क्योंकि वो उसके कब्जे में है। जहालत को दूर करना वो 5 मिनट में भी हमाकत है, वो भी दूर कर सकता है, जहालत भी दूर कर सकता है। वो तो एक आरजी है ना, वो क्या है? एक आरजी है। नंबर 3 ये था कि इसमें तब्दील उससे भी नहीं आएगा कि जो ज्यादती और नुकसान वाले माने को कबूल नहीं करता। मिसाल के तौर माता जैदुन, माता, ये नहीं है कि अगर बंदा कहे मात है जैदुन अम वातु मिन अमरिन, जैदुन अम वातु मिन अमरिन, इसलिए कि ये जो है मरना जो है इसके अंदर ज्यादती नहीं है ना नुकसान। ये नहीं कहा जाएगा कि ये बंदा मरने में, तो दोनों ही शामिल है, क्योंकि जहां होता है ना इसमें तब्दील, वहां 2 जातें, 2 बंदे एक वसफ में शरीक होते हैं, और वसफ एक के अंदर ज्यादा होता है दूसरे के अंदर कम होता है। लेकिन ये नहीं है मिसाल के तौर पर जैद भी फौत हुआ अमर भी और हम कहें कि जैद अमर से ज्यादा मरा है, हालांकि मौत तो तमाम के लिए बराबर है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये बंदा, क्योंकि ये ज्यादती और नुकसान के माने को कबूल नहीं करता, इसलिए ऐसे अल्फाज से भी, ऐसी अबवाब से भी इसमें तब्दील नहीं आएगा। उसकी वजह भी बता दी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर ज्यादती और नुकसान। हालांकि इसमें तब्दील में माना मस्दरी बतौर ज्यादती पाया जाता है किसी के मुकाबले में, तो जहां वो ज्यादती इसमें तब्दील बनाएंगे तो जिससे बनाना है वो ज्यादती को कबूल नहीं करता, तो फिर उससे इसमें तब्दील भी नहीं आएगा। अगर हम इसमें तब्दील बना दें और उसके अंदर इसका लिहाज करें कि ये ज्यादती और नुकसान को कबूल नहीं करेगा, तो फिर इसमें तब्दील की जो जिसके लिए बनाया गया था
اور اس میں تبدیل کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کا لحاظ نہ کریں بلکہ اس میں تبدیل کا لحاظ کریں تو پھر یہ جو زیادتی اور نقصان کو قبول نہیں کرتے ابواب، وہ جو جن کا معنی آتا ہے، پھر ان کا مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے ان سے اس میں تبدیل بھی نہیں آتا۔ نمبر 4 ہم نے کہا تھا افعال ناقصہ اور افعال غیر متصرفہ سے بھی اس میں تبدیل نہیں آتا۔ اب سوال ہوگا افعال ناقصہ جیسے کان، سار، ظل، بات، اصبح، حامسہ جو بھی ہیں ان سے جیسے کان یکون، یہ تو آتا ہے لم یکن۔ اب یہ ہے کہ اس میں تبدیل کیوں نہیں آتا کانا سے؟ اقوانو آپ لے لیں، زید اقوان من امر، وہ اس لیے اس میں تبدیل صرف فاعل میں عمل کرتا ہے۔ کس میں کرتا ہے؟ اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں، وہ کیا ہے وہ الگ بات ہے۔ اور جو افعال ناقصہ ہے یہ دو میں عمل کرتا ہے، ایک اسم ہے اور دوسرا اس کی خبر ہے۔ یہ اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے، کان زید قائما، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، بطور یہ متعدی کے مشابہ ہے۔ کیا ہے؟ متعدی کے مشابہ ہے۔ اگر ہم اس سے اس میں تبدیل بنائیں گے تو یہ تو صرف فاعل کو رفع دے گا، کیا ہے؟ اور وہاں افعال ناقصہ تو جب تک خبر نہ آئے تو وہ پورا ہی نہیں ہوتا، اس لیے افعال ناقصہ بھی اس میں تبدیل نہیں آئے گا۔ افعال غیر متصرفہ سے کیوں نہیں آئے گا؟ وہ اس لیے کہ افعال غیر متصرفہ ایک ان وہ ہوتے ہیں اس میں جامد کی طرح، جس طرح اس میں جامد کوئی چیز نہیں بن سکتی اسی طرح افعال متصرفہ سے بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی، حالانکہ اس میں تبدیل تو ہوتا ہی وہ ہے جو مشتق ہو۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ امید ہے کہ جتنے بھی سوالات تھے کہ میرا ارادہ تو ہمارا یہ تھا کہ ہم تمام اسماء مشتقات کے بارے میں تفصیلاً بحث کریں، لیکن وقت زیادہ ہو جاتا ہے تو آج ہم اتنا ہی سبق پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو رہ گئے باقی وہ پڑھیں گے، پھر ان کے درمیان فرق پڑھیں گے، مزید جو اعتراضات ہوں گے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس میں تصغیر جمع مکسر بنانے کا طریقہ بھی پڑھیں گے، اور تمام پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جتنا ہم نے شروع سے آخر تک پڑھا ہے تمام کا اجرا بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات اپنی رضا کی خاطر علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔